بہن سے چلتا ہے، گھر ماں اور بہن سے سدھرتا ہے چلتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان ماں کے قدم کے نیچے جنت کو رکھ دیا. رب نے ماں کو وہ عصمت کمال دی ہے، رب نے ماں کو وہ عصمت کمال دی ہے کہ اس کی دعا سے آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دی ہے. پیر صاحب سے دعا کرو کوئی گارنٹی نہیں، مولانا صاحب سے دعا کرو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ایک ماں سے کبھی دعا لے کے دیکھنا، اس کی گارنٹی اللہ ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بیٹے کے حق میں اگر سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے تو ماں اور باپ کی ہوتی ہے. اگر سینہ کو ٹھوک کے پیٹھ کو تھپتھپا کے میدان میں اپنے بیٹوں کو اتار دے دعا دے کے ماں، تو بیٹا کبھی خالی میدان سے واپس نہیں. میری ماں اپنی زندگی پہ غور کرو کہ آپ کو اللہ نے بنایا کیا ہے. رب نے ماں کو وہ عظمت کمال دی ہے کہ اس کی دعا سے آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دی ہے. اور قرآن نے ماں کی محبت کی اس قدر مثال دی ہے، قرآن نے ماں کی محبت کی اس قدر مثال دی ہے کہ جنت کو اٹھا کے اسے قدموں میں ڈال دی ہے، جنت کو اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈال دیا ہے. تو ان کے اوپر ہستی ہیں، ان کے آگے پوری رات تم چلاؤ، پورا دن چلاؤ، غور نہیں کریں گے. اگر ماں نمازی ہو جائے تو بیٹا خود بخود نمازی ہو جائے، کیونکہ باپ جو ہوتا وہ تو بیچارہ روزی کے چکر میں کمانے چلا گیا، باپ کے سامنے بیٹا بول کر رہتا ہے. لیکن ماں 24 گھنٹہ رہتی ہے بیٹا کے سامنے، اور بیٹا دیکھتا ہے اگر ماں نمازی ہے تو بیٹا خود بخود نمازی ہو جائے گا. اس لیے ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے دماغ سے کوئی بھی خرافات اگر ہے تو اس اسٹیج کے حوالے سے میں بول رہا ہوں کہ اگر میری ماں اور ہمارے جتنے جنتا بھائی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ ٹھان لے کہ اگر ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگا سکے، ہمارا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے، تو زیادہ میں نہیں خوراک دے کے جاؤں گا، صرف ایک چیز پہ عمل کر دو. زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، اسلام کی طاقت تمہیں بتانا چاہوں گا. صرف ایک چیز پہ عمل کر لو، اس عمل کا نام ہے نماز. نماز سے بڑا نہ کوئی ہتھیار ہے، نماز سے بڑی نہ کوئی محبت ہے. نماز میں وہ پاور ہے کہ ہر بندہ اگر طے کر لے اپنے دل سے کہ ہم ٹرین میں جائیں گے اسٹیشن پہ نماز پڑھیں گے، فلائٹ پہ جائیں گے تو ایئرپورٹ پہ نماز پڑھیں گے، کسی بس سے جائیں گے تو روڈ کے سائڈ پہ نماز پڑھیں گے، گھر میں رہیں گے تو گھر میں نماز پڑھیں گے، کھلیان میں رہیں گے تو وہی نماز پڑھ لیں گے، کھیت میں رہیں گے تو وہی نماز پڑھ لیں گے، مسجد میں جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے. تو اگر یہ طے کر لیا بندہ، آندھی آئے آتی رہے گی، طوفان آئے آتا رہے گا، کوئی بھی چھیڑے چھیڑتا رہے گا، کوئی بھی وار کرے کرتا رہے گا. ارے جب رب کی بارگاہ میں چرچا با سجود ہو جائے گا تو اس کا حفاظت وہ نہیں کرتا، اس کے خاندان والے نہیں کرتے، بلکہ اللہ فرماتا ہے جب ایک میرا مومن بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے میں کوئی باڈی گارڈ نہیں لگاتا، بلکہ فرشتوں کو حفاظت کے لیے لگاتا. جس کی حفاظت فرشتے کرتے ہو وہ ڈرے. لیکن کیا کریں، ناچنا خود کو نہ آئے اور کہنا کیوں ہے، عمل خود نہیں کر پاتا اور کہتا یہ مسجد بند ہو گئی وہ مدرسہ بند ہو گئے، مسجد بند ہوئی ہے نماز نہیں ہوئی. نیا کتنے نمازی تھے خوب نماز پڑھنے جاتے تھے، اور جا کے نماز ایسے نمازی کی قسم سے بتا رہا ہوں حدیث سے سن لو، ایسی نماز کو گلیش کپڑے میں لپٹ اس کے منہ پہ مار جائیں گے. ایسے ایسے نمازی ہیں نماز پڑھنے جائیں گے، نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کے نکلیں گے کہا تین مولوی کچھ زیادہ دکھا اچھے سب کی بےعزت کرے گا. اب تو چل کرے گا وہ بھائی تمہاری نماز کا تیرا لباس جو کہا ہوا تھا وہ تم اٹھو کرے گا. نماز کی اوقات کو تمہیں بھٹکانا ہے. اور نماز دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نماز کی حالت میں آنا چاہتا ہے، جب میرا بندہ میرے گھر میں آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا
किसी बड़े आदमी से मिलने जाओ, इसी को हम कहते हैं हमारे श्री योगी जी से अगर मिलने तुम चले जाओ, क्योंकि नए नए जगह सुन रहे हैं, और इसको अब मोदी जी से मिलने चले जाओ, ऐसे नहीं मिल सकते हैं। रोकेगा तो किधर हमको भाई, पीएम साहब सीएम साहब, अच्छा रुक कुछ लाया तो नहीं है, चलो होता चेक नहीं होता। क्यों? जितनी तुम्हारे पास गंदगियां होंगी सब निकाली जाएंगी, कोई लाया तो नहीं। चेक, ये तो दुनिया का हाल है। और बात में आके बात करो, तुमको रोक के घर में जा रहे हो, सुभान अल्लाह, तुमको रोक के घर में जा रहे हो। अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मेरे घर में आना चाहता है और नमाज पढ़ना चाहता है तो क्या होता है मालूम है? कैसे होता है? जब मेरा बंदा मेरे घर में आना चाहता है तो मैं फरिश्तों को कहता हूँ, आदेश देता हूँ, आर्डर देता हूँ, सिग्नल देता हूँ, कहता हूँ फरिश्तों ये बंदा मेरी बारगाह में दुआ करने आ गया है, ये बंदा मेरी बारगाह में सजदा करने आ गया है। फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार अल्लाह क्या हुक्म है, क्या हुक्म है? अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों इसके जिस्म से जितने गुनाह है सब अलग कर, इसके जिस्म से जितने गुनाह हैं सब अलग कर दो, सब अलग कर दो। अल्लाह का हुक्म है, सारे गुनाह को अलग कर देते हैं। क्योंकि किसी आदमी से नहीं मिलने जा रहा है, आज तो अल्लाह के घर में अल्लाह से मिलने जा रहा है। पूरा जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अल्लाह से मिलने जा रहा है। हदीस में है कि जब बंदा नमाज की हालत में होता है तो वो अल्लाह ताला का दीदार, वो अल्लाह ताला को देखता है। अगर ये न हो सके कि मैं नहीं देख रहा हूँ तो इतना जरूर समझे कि अल्लाह हमें देख रहा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें देख रहा है। तो अल्लाह के घर में जा रहा है और स्पेशलिस्ट घर में जा रहा है, इसलिए ऐसे नहीं जाएगा, गुनाह को साफ किया जाएगा, गंदगी को बाहर कर दिया जाएगा, सारे गुनाह को जुदा कर दिया जाता है। अब बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो गया है। जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है उसके पास गुनाह नहीं रहते हैं। और जब नमाज पढ़ के फारिग होता है और निकलना चाहता है मस्जिद से तो क्या होता है मालूम है? तो उसको ऐसा करते हैं परवरदिगार आलम ये जो गुनाह जुदा किया था, अलग किया था, इसे क्या करूं? समझे? ये जो गुनाह अलग किया था, जुदा किया था, ये नमाजी हो गया, इसे क्या करूं? अल्लाह ताला फरमाएगा ये दुनिया की चीज नहीं है, समझे? ये दुनिया की वो चीज नहीं है कि किसी अमीर के पास मिलने जाए तो ले लिया जाए और फिर दे दिया जाए। ये मेरी बारगाह में है, एक बार गुनाह को जुदा कर दिया गया है। अब ये मेरा भगत, मेरा बंदा, मेरा 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 ये जो है शम्द और हमद करने के लिए उतर आया है, तो अब गुनाह को से अलग ही रखा जाएगा, इसे जुदा ही रखा जाएगा। नौजवानों, इसलिए इतनी बड़ी सभा में आए हो, मैं कहना चाहूंगा क्या बात तकरीर बंद कर दी जाए, कुछ लोग उठा बैठी लगा रहे हैं, कुछ समस्या तो नहीं, किसी को इसलिए दबाव में नहीं लेता, क्योंकि एक जगह बिहार का विषय है ना, बहुत आदमी सामने रखता है, बहुत से एक बार बहुत डर गया, कहा मौलाना बहुत खतरनाक लग रहा है, कहीं उठ के मारने नहीं मौलाना होते एक से वो दहशत समझे नहीं मालूम था, बैठा रह गया, अपनी पब्लिक खत्म। कुर्सी वाला कुर्सी बटन ने कहा जाइए भैया दर्शन खत्म, कहा आप कहा जाए। जिस जरूरत के लिए बार बार उठ रहे थे मोला सा नहीं पूरी करना, तो भैया इस किस्म का मामला होगा तो कोई नहीं रुकेगा, वो जा सकते हैं, उनके लिए रोक नहीं। लेकिन आज सुनना चाहते तो सुन। हमारी आदत है किसी भी सभा में जाते हैं तो सबसे पहले पवित्र मंत्र का अध्ययन कराते हैं और मैंने मैं बोला तो आप लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा तो सबसे बड़ा आधार है, इसी पे दुनिया टिकी है, इसी पे दीन है। और जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं वो कुछ नहीं, ना पढ़े तो मुसलमान नहीं। ला इलाहा ऐसे पढ़ाना है, जब कहोगे हम मुसलमान हैं, ढोल बजाने को तो ये चमड़ी फाड़ जाता है, उसी की जमीन की गर्दन हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, वहां से बताता है नाच नाच कर बजाएगा, वो गड्ढा कर देगा।
और अगर इतना ताव रहता है हुसैनी तेवर, इतना हुसैनी तेवर उसके पास रहेगा कि अगर कुछ बोल दिया तो डरते डरते खोपड़ी फोड़ देता है, जेल चला जाए। करता ही नहीं करता। इसके लिए आप इतना करते हो कि जहां से सारी चीजें जन्म ली है इस्लाम की, प्यारे हुसैन की वहीं से है। और ला इलाहा इल्लल्लाह के जो परिवार है इससे सब शाखें टूटी हुई है, ये जड़ है। तो जब कहीं पढ़ने की अरे ये कहा नींद ना हो। अरे जब कोई ऐसा वक्त आए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो यहाँ पढ़ो ऐसी आवाज निकालो कि जहां तक ला इलाहा की आवाज जाएगी वरना बताता हूँ कई साल तक वहां तक बरकत नहीं खत्म होगी। इसलिए ऐसा पढ़ा करो कि समझ में आए जहां मुसलमान बैठे हुए हैं, दीन के सिपाही बैठे हुए हैं। मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़िए ला इलाहा, और जोर से कहो ला इलाहा, और जैसे ला इलाहा अब आप बता सकते हैं 4 बार आप इस कलमे को पढ़े हैं, आप फैसला करिएगा आपका चेहरा जग हो गया है, चमकदार हो गया है, जगमगाने लगा है। ऐसा लगता है कि अभी आप घर से बढ़िया पराठा खा के आए, एकदम जगमगाने लगा। अच्छा खुद फैसला करो, अगर जितनी देर से यहाँ बैठे हो और टीवी के पास बैठे होते तो खूब टीवी देखेगा, खूब मिटा के देखेगा। लाइट चली गई तो बैटरी लगाओ, बैटरी के बाद इन्वर्टर लगाओ, और जब सब स्विच ऑफ हो गया ऐसा बोलेगा। और जब सब खत्म हो गया तो उसका चेहरा जो है बिहार के झारखंड की तरह लगा होता कि नहीं होता कि वो होता। और मुस्तफा की मिलाद में आए, कलमा पढ़े, चेहरा चमक गया, नशर नजर नारायणपुरी, मोहम्मद समझ में नहीं आया, जुमला समझ में नहीं आया, टीवी रात भर देखा तो चेहरा लटक गया। मुस्तफा की मिलाद में बैठा तो चेहरा चटक गया, रात भर टीवी देखा तो चेहरा लटक गया, मुस्तफा की मिलाद में आया तो चेहरा चटक गया। बात क्या है तो सुनो। टीवी के सामने देख रहा था, नंगी तस्वीरें देख रहा था, टीवी में देख रहा था, गलत तस्वीरें देख रहा था, गुनाह बढ़ते जा रहे थे, आंखों को गंदा कर रहा था, दिल को नापाक कर रहा था, इसलिए चेहरा लटक गया। मुस्तफा की मिलाद में आया, उसे कोई गंदी चीज ना बताई जा रही थी, बल्कि उसके दिल की सफाई की जा रही थी और मुस्तफा का कलमा पढ़ाया जा रहा था, इसलिए चेहरा लटका नहीं बल्कि चमक गया। मिल्लत के नौजवानों, हजरत बयासी गुस्तानी फरमाते हैं कि जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके 12,000 गुनाह, सोचो तो बच्चे 12,000 गुनाह, एक नहीं 12,000। कितना पड़ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो यार, मचल के पढ़ो ना, ला इलाहा। और कैसे ला इलाहा, जब बंदा पढ़ता है तो उसको 12,000 गुनाह मिटा देते। ये कौन? ये मौलवी महशर रजा नहीं कह रहे हैं, हजरत बयासी गुस्तानी कि उसके 12,000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और जब बंदा पढ़ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो उसके नामे आमाल में 12,000 ने किया डाल। क्या प्लान है? यहाँ तो हिंदुस्तान का रवाज लिया जाता, दिया नहीं जाता। यहाँ गुनाह को निकाला जा रहा है, उसके बाद में तेरी छोरी में नियमत को डाला जा रहा है। 12,000 गुनाह मिट गए। 12,000 गुनाह मिटने के बाद 12,000 ने क्या पीछे मिल गई। अच्छा ये बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के 12,000 गुनाह मिटता है, 13 तो मिट सकता है, 14 मिट सकता है, ये 12 का है। तो अब सुनो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह है उसमें 12 हरफ है। सुभान अल्लाह, उसमें 12 हरफ है और एक हरफ पे 1
साथ 12 हरफ ला इलाहा इल्लल्लाह में है, इसलिए 12 अफसार को नाम मिल जाते हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी 12 हजार में क्या मिल जाती है, इसलिए उसमें भी 12 हरफ है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये कलमा से होता क्या है, नहीं कोई बताया हो तो सुन लो, क्योंकि हम कोई चीज जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो फिर मानेंगे नहीं, उसकी कदर नहीं करेंगे, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे। यही वजह है कि बीवी को कुछ लोग नहीं समझते हैं। बीवी को कुछ लोग नहीं समझते, क्या करते हैं, अल्लाह की क्या घूसा क्या करके ऐसा लग रहा है कि मारे खा गया है इसके घर। अरे भाई, बीवी मारने के लिए नहीं है, बीवी तो घर में तुम्हारे घर को जोड़ बनाने के लिए आई है। कभी बीवी से यार मोहब्बत तो कर, मोहब्बत बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं दिल की बात कहता हूँ, ईमान से बताता हूँ, अगर जिंदगी में 24 आवर्स मोहब्बत करना होगा तो प्यारे रसूल से मोहब्बत करना, और दूसरे नंबर पे मोहब्बत करना होगा। तवज्जो चाहूंगा, अगर किसी इंसान से मोहब्बत करनी है तो सबसे फर्स्ट नंबर पर अपने माँ बाप की मोहब्बत रखना। अगर अपनी जिंदगी को खुश रखना चाहते हो और चाहते हो कि काम को जाओ तो साइकिल को घर लाओ, एकदम मस्ती में पानी का जो पाठो घर की मस्ती में पाठ को थकाओ नहीं। अगर ये चाहते हो ये बहुत बड़ी खुराक दे के जा रहा हूँ तो सिर्फ बीवी से मोहब्बत करके देखना, किसी और से नहीं। आज जब मोहब्बत तो जानते हो कैसे कैसे करते हैं, ऐसी मोहब्बत मत करना, बीवी से मोहब्बत करो। मोहब्बत करने की चीज है, बीवी की मोहब्बत में कई फायदे मैं आपको बता दूं। पहला फायदा यह है कि तुम गलत नजर किसी को नहीं देखेगा। मोहब्बत किसी को बोलते हैं, अगर बीवी से सच्ची मोहब्बत कोई बंदा करता है, आप पूछ लेना जा करके, किसी और को गलत नजर से नहीं देख सकता है, इसलिए कि जब जब देखेगा उसकी बीवी उसे याद आ जाएगी, जब जब देखेगा उसकी बीवी उसे याद आ जाएगी। इसलिए बीवी से मोहब्बत करने की, मोहब्बत करके देखो। जैसे आओगे काम से डेढ़ लोटा के पराठा देना खुद देगी, अब कभी बीवी से दुश्मनी करके देखना। अल्लाह तो कुछ लोग बैठे होंगे, जानते होंगे, जैसे आएगा अल्लाह खाना कोई मजा न जाए, ठीक है, खुराक मिलती कि नहीं मिलती है, जब खाना लेके आएगी खाएगा, नमक को जान बुझ के ज्यादा कर देगी, क्योंकि खुश नहीं खुश, जितने मरे झगड़े होते अच्छा, इसलिए खुद नमक झोंक देगी कस के, जैसे खाएंगे। अरे मतलब बहुत नमक है, कहाँ नहीं, काबुले खाए को खाओ नहीं तो मर जाओ। ये तुमको खुराक खूब बड़ी बड़ी इंजेक्शन दे रही है, यह तुम्हारी सजा है। इसलिए बीवी से मोहब्बत, अगर तुम एक बड़ी मोहब्बत खाली ज्यादा मत करो। मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, इस्लाम के ताबुक से फॉर्मूला दूंगा, आप अमल करके अल्लाह बता रहा हूँ। अगर किसी की बीवी होगी, अगर भाग गई होगी, अगर किसी की बीवी होगी उससे नहीं पटती होगी, किसी की बीवी होगी उससे ज्यादा झगड़ा करती होगी, रजा के जुमले को याद कर देना, इसे याद कर लेना, तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। और आने वाले वक्त में जब मैं कहीं आऊंगा तो मौलाना साहब है कौन से निकाल निकालिए, इसलिए किया मौलाना है क्या बता के गए थे, सिर्फ एक फॉर्मूला बोले भाई अमल करोगे, शादीशुदा लोग जो है हाथ उठाए अमल करना चाहिए तो हम बता देंगे, तो हम नहीं बताएंगे। नहीं चाह रहे एक साथ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो एक लोग चाहते हैं कि बीवी से मोहब्बत करेंगे, देख लो आज दोनों पार्टी मौजूद है, आज यही पोल खुल जाएगा, देख लो। एक आदमी तैयार नहीं कि हम अमल करेंगे इस पर, अब बाकी लोग कहे अमल करें, कितने का चांस कैसे आएगा। सुनो, अगर किसी की बीवी रूठी रहती है, इस्लाम के कानून पे बहुत कानून है, लेकिन एक कानून बताता हूं, खाली आप अमल करके देख लीजिएगा। इसलिए कि हम पढ़ाई नहीं किए हैं तो हम हर चीज को मजाक समझते हैं। आप सुबह सुबह उठो, सुबह जिसकी बीवी तुमसे भी उठी, कभी कभी होता है, चाहे उम्र चढ़ी दिमाग की औरत होती है ना, गाड़ी घोड़ा हाथी वाली, वो तुम पहले हो सोए, अब जैसे बोलियो तुम्हारा दिन खराब, पूरा दिन खराब, बस पूरा दिन भाई लगती की नहीं होती है। सुबह उठो, अगर पहले उठ गई
सलाम करो। सुभान अल्लाह। डुप्लीकेट फार्मूला नहीं दे रहा हूँ, स्टेट जिम्मेदार है। और ना जाने कितने लोग इस पे ज्यादातर हम बोल रहे हैं, मौलाना लोग अमल कर रहे हैं, स्टेज से ज्यादा आवाज है और अमल भी करते हैं पढ़े लिखे। मैं तो बीवी को सलाम कर देता हूँ कभी कभी। क्यों? सलाम करने से इधर घटेगी थोड़ी। सोचे कि को बहुत मानता है, अरे हमसे सलाम कर रहा है, वो आइंदा वो खुद ही सोचेगी कि तो कैसे से मर्द है ना, बाहर से 2-2 साल के आते हैं ना, न सलाम न दुआ न पानी न लोटा न तकिया, और गुस्सा में सूटकेस कर रखते हैं, सूटकेस फूट जाती है। यह उनकी सजा है। एक बार बीवी को फार्मूला दे देना, डुप्लीकेट नहीं देना, किसी भी उसके साथ से पूछ लेना। सुबह सुबह उठो, वो पहले उठी तो उठो, अल्लाह रसूल का नाम लो, फजर की नमाज पढ़ो और उसके बाद में जैसे बीवी मिले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एक बार करके देखना। बेशक। अरे ईमान से 10 साल का झगड़ा होगा, सोचोगे किधर से चांद निकला। आज उसको हुआ क्या है, सलाम कर रहा है हमसे, उनका बता देना कि माशा रजा आए थे, फार्मूला दे गए, उसी को यूज किया, कुछ असर पड़ा तो खुद ही सोची कि सुबह सुबह और लगा तुम पहले उठ गए, वो लेटी है, जगाओ ऐसा ना, ऐसा करोगे तो चलो, ऐसा मत करो। बीवी मारने की चीज, धमकाने की चीज नहीं है, प्यार की चीज है। अरे लोहार, किसी भी लोहार को नहीं देखे होगे कि लोहा को डायरेक्ट मोड़ देता, आग में तपाता है, मोहब्बत से प्रेम से धीमे 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 ठोकते ठोकते उसे। अगर हदीस की रोशनी में आओ, अल्लाह ताला ने औरत को 1.5 पशु से पैदा किया है, डायरेक्ट पे घुमाना चाहता टूट ही गए और तो टूटेगी नहीं, टूट गई हो जाती। अगर कर रहे हैं धोखा हुआ रुपया क्या सारी आगे और भी भाई और क्या कहा कर दो कहाँ हो रहा है। अरे छोड़ो यार, फिर आगे तुम्हारा दिमाग पहले बीवी खराब कर देती, उसे तोड़ दिया, पब्लिक खराब कर, कभी तोड़ने की कोशिश मत करना। अल्लाह तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाता है जब बंदा एक बंदे के दिल को तोड़ देता है तो तोड़ने वाला अगर दिल को तोड़ दिया है, शिकायत से तोड़ा, बिजली से तोड़ा, बदनामी से तोड़ा, तो समझ लो कि उसके बाद फटकार बजती रहती है। उस वक्त तक फटकार बजेगी जब तक दोनों दिल को तोड़ न दे। और अल्लाह ताला के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि जब कोई बंदा तो दिल को आपस में जोड़ देता है तो अल्लाह ताला उस दिल को जोड़ने के सच्चे में अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमा देता है। इसी का उल्टा ले लो, अगर किसी के दिल को कोई जोड़ दे तो जन्नत मिल जाती है और किसी के दिल को तोड़ दे तो जहन्नम जाना। सुभान अल्लाह। चैलेंज के साथ बोलना, दिल को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करना, जोड़ने की कोशिश करना। और जोड़ने वाला इंसान इतना पावरफुल हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि जब उसका खुदा उसे तोड़ना ना चाहे तो कौन तोड़ सकता है। जिसे खुदा रखे उसे बेशक। इसलिए मेरे भाइयों, बीवी से सलाम, अच्छा सुबह सलाम उठे कर लिया, क्या जाता सलाम करने में, 1 मिनट भी तो नहीं लगेगा, कुछ जाता है, लाठी डंडा लगेगा, पैसा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, खाली सलाम। अच्छा, और शाम के टाइम जैसे बाहर से आओ, जैसे बाहर से आओ फिर सलाम, ज्यादा नहीं आ रहे, ज्यादा